प्रेज़ लॉर्ड आए हुए सभी जनों को यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी वंदना पेश करता हूँ. I greet you all in the blessed name of the Lord and Savior Jesus Christ. Thank God for giving us one more opportunity to come in His presence, to praise Him and to adore Him. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से एक और बार ऐसा एक मौका दिया प्रभु के सन्निधि में आकर उसके नाम को उठाने का. Before we start, let's spend some time in prayer. We'll be starting meeting with a word of prayer. I will invite Daniel uncle to come forward and he'll be doing a prayer and we'll be starting this fellowship. Let's start this worship with a word of prayer and spend a few minutes in silence, thanking the Lord for all that He has done for our life. Yes, Father, we come before You, knowing that You are the creator of our lives. We want Your blessings. We want Your peace for our life. As we go through this time of worship, Father, we pray that You'll speak to us. Our hearts will be touched through the message, and we'll go home with a new purpose, with a new joy, I pray. And Father, please accept all the praise and the worship that we come before You, singing with a grateful heart for keeping us alive and blessing us in all the ways that we have walked. Father, we thank You for Your faithfulness, and You'll be with us in the coming days also. Your promise is there for our lives, and thank You for everything that You have done in our life. Ask in the precious name. Amen. Amen. I once again greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We live in an uncertain world. ये ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का कुछ ठिकाना नहीं. So we know it's all God's protection. प्रभु की दया है, करुणा है. प्रभु हमें सुरक्षित रखता है. उसके ऊपर कुछ है नहीं ज़्यादा बोलने को. We'll be spending some time in praising and worshiping our God. I would request those people who are designated to sing to come forward, and all those who can stand will be, if you can stand, so we'll be singing a few songs and we will be praising God. The first song which we are going to sing says, Lord, I need You. And we all know in this uncertain world, a lot of things are not in our control. We may think like हमारे काबू में सब कुछ है. But day by day, day after day, we see things are moving in such a direction that we can't do anything much. So let's spend this time praising God. जो भी अभी इस समय खड़े हो सकते हैं, you all can stand, सब खड़े हैं, and we'll be clapping our hands and praising God this time. God.
कि हमको खुदा की जरूरत है हर घंटे, हर एक समय। हमको कभी लगता है कि हम काबिल हैं, परंतु हमारी काबिलियत नहीं, परमेश्वर हमको बल देता है, इसलिए एक एक क्षण हम निकाल पाते हैं। अगला जो हम गीत गाएंगे वो हिंदी में है। इस प्रकार वो गाना गीत कहता है कि आशीष तुझसे चाहते हैं, इस स्वर्ग पिता हम आते हैं, और वी आर सीकिंग योर ब्लेसिंग्स एंड वी कम इन योर प्रेजेंस। आशीष तुझसे चाहते हैं, इस स्वर्ग पिता हम आते हैं। जो लोग ताली बजा सकते हैं, all those who can clap and sing, let's all praise God. है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, हमें कोई ताकत नहीं है. All those who can come before the presence of God and acknowledge that God is going to shower His favor and blessing. हम अगर आते हैं प्रभु के सामने नम्र हो कि प्रभु हमारे में कोई ताकत नहीं, ना कोई लियाकत, ना कोई ज्ञान है, ना कोई खूबी है, तो प्रभु हम सबको हम सब पर
अपनी फेवर प्रभु हम सब पर अपनी करुणा और प्रभु हम सब पर अपनी ताकत को ढेलेगा। अपने आंखों को बंद करें एक क्षण। प्रभु प्रेमी परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तेरा फिर से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, गीत गाने के लिए तूने हमें बल किया। परमेश्वर, जिस प्रकार हमने गीत में गाया, आपको एक खूबी, आपको एक लियाकत, प्रभु बख्शो हम पर अपनी ताकत। Father, we acknowledge that we are weak, we don't have anything. Lord Father, we can't claim on to anything, Lord Father. Whatever we are, Lord Father, it's your grace and mercy. Lord Father, we need you every moment, every hour we need you. Lord, we can never say, Lord Father, we don't need you for some time, but we need you in certain times. But Father, we need you in every moment. Lord Father, pray, Lord Father, that you continue to lead us, guide us, Lord Father. Strengthen us, Lord Father. परमेश्वर, आगे की सारी सेवकाइयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। Father, we submit all the further proceedings of today's meeting, Lord Father. Pray, Lord Father, that you talk to us, speak to us, Lord Father, through the word and songs. Father, we once again commit all these matters under your mighty hands. Lead us, guide us, in Jesus' name we pray. Amen. जो लोग अभी खड़े हैं, please remain standing as we'll turn to Psalms 5, भजन संहिता 5 हम इस समय पढ़ेंगे। Let's turn our attention to Psalms 5, भजन संहिता 5, ज़बूर 5, 12 पंक्तियां हैं। We'll be reading in a responsive way. पहली पंक्ति मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप, और उसी प्रकार से हम नीचे जाएंगे। 12 पंक्तियां हम पढ़ेंगे। ज़बूर 5, Psalms 5। हे यहोवा, मेरे शब्द सुन और तू उसकी सुधि ले, जिसको तुझसे कहने का मैं यत्न कर रहा हूँ। Pay attention to the sound of my cry, my King, my God, I pray to you. तीसरी पंक्ति, हे यहोवा, हर सुबह तुझको मैं अपनी भेंटें अर्पित करता हूँ। तू ही मेरा सहायक है, मेरी दृष्टि तुझ पर लगी है, और तू ही मेरी प्रार्थनाएं हर सुबह सुनता है। You are not a God who delights in wickedness. Evil cannot dwell with you. तेरे निकट अविश्वासी नहीं आ सकते। ऐसे मनुष्यों को तूने दूर भेज दिया, जो सदा ही बुरे कर्म करते रहते हैं। Destroy those who tell lies. The Lord abhors violent and treacherous people. चौथी पंक्ति, किंतु हे यहोवा, तेरी महाकरुणा से मैं तेरे मंदिर में आऊंगा। हे यहोवा, मुझको तेरा डर है, मैं सम्मान तुझे देता हूँ, इसलिए मैं तेरे मंदिर की ओर झुककर तुझसे दंडवत करूंगा। Lord, lead me in your righteousness because of my adversaries. Make your way straight before me. वह लोग सत्य नहीं बोलते, वह झूठे हैं, जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। उनकी मुख खुली कभी कब्र के समान है। वह औरों से उत्तम चिकनी चुपड़ी बातें करते, किंतु वह उन्हें बस जाल में फंसाना चाहते हैं। Punish them, God. Let them fall by their own schemes. Drive them out because of their own crimes, for they rebel against you. 11वीं और 12वीं पंक्ति एक साथ पढ़ेंगे। Verse 11 and 12 will read together। किंतु जो परमेश्वर के आसमान होते हैं, वह सभी प्रसन्न हो और वह सदा सर्वदा को आनंदित रहे। हे परमेश्वर, तू उनकी रक्षा कर और उन्हें तू शक्ति दे, जो जन में तेरे नाम से प्रीति रखते हैं। यहोवा, तू निश्चय ही धर्मी को वरदान देता है। अपनी कृपा से तू उनको एक बड़ी डाल बनकर फिर ढक देता है। प्रभु का धन्यवाद करें। Let's thank God for this blessed passage. You all may be seated. I once again greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं फिर से एक और बार आप सभी को अपनी वंदना पेश करता हूँ। 2 सप्ताह बाद हम फिर से यहाँ पर आए मिले। हम सब we all gathered here after 2 weeks. And in these 2 weeks, ये 2 हफ्तों में काफी कुछ हुआ। प्रभु परमेश्वर ने हम सबको सही सलामत रखा। प्रभु परमेश्वर ने हमको चलाया। Let's thank God. प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर की बड़ी करुणा हम सब पर बनी रही। खासतौर से हमें से जोएल अंकल भी इस हफ्ते हॉस्पिटलाइज हुए थे, बट प्रभु ने उनको सही समय पर चंगाई दी और God brought him out. परमेश्वर ने उनको सही तरीके से चलाया। कुछ ज्यादा without any much seriousness, God brought him out. Let's praise God for him. Let's praise God for that matter. और इस हफ्ते प्रत्येक तौर से 2 लोग, Daniel uncle's wife Catherine auntie and Joshua, they'll be traveling. Let's pray that God's hand will be upon them and God will bring them here safely. Also, let's remember
George and Galanti, they could not make it, and others also, some of us had been weak. हमें से कुछ लोग बीमारी में भी थे, बट परमेश्वर ने चंगाई दी। और खास तौर से यहाँ बैठे हुए लोगों में से 3 लोग अगले सप्ताह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे। प्रभु के दास पास्टर टिंकू और जोएल और पास्टर के बेटे टिम, तीनों लोग अगले सप्ताह 19 को अफ्रीका जा रहे हैं। पास्टर साहब जाएंगे 20 दिन के लिए, और टिम और जोशुआ विल बी गोइंग फॉर 10 डेज। तो वहाँ पे युगांडा और DR कॉन्गो, पास्टर आप ज़्यादा डिटेल्स देंगे, बट उनको भी हम प्रार्थना में याद रखें। वहाँ भी आज हमने सुना कि थिंग्स आर नॉट दैट गुड, क्योंकि एक मीटिंग पास्टर को चेंज करना पड़ा। वहाँ पे कई लोगों का कत्ल किया क्योंकि वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह का। तो इट्स नॉट कि वहाँ जाके बहुत ही एक अच्छा सब एवरीथिंग इज इन फेवर, बट गॉड सेंड्स, परमेश्वर हमको जहाँ भी भेजता है एक उद्देश्य के साथ भेजता है, और हम प्रार्थना करें कि उद्देश्य वहाँ पर पूरा सफल हो। जो हमने साम्स पढ़ा, उसके जो हमने ज़बूर पढ़ा, उसकी ओर मैं आपके अटेंशन को लाऊंगा, आपके ध्यान को लाऊंगा। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 10 मिनट लूंगा। इसमें से कुछ चीज़ें जल्द से बैठकर मैं बोलकर मैं बैठना चाहूँगा। यहाँ पर जो इसके दूसरे वर्स में ये दाऊद का एक भजन संहिता या एक ज़बूर है, एंड इसमें सेकंड वर्स जब पढ़ रहा था, एक थोड़ा कॉट माय अटेंशन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, बट समटाइम्स हम जब देखते हैं तो एक चीज यहाँ पर जो लिखी है, इस प्रकार लिखी है, हियर माय क्राई फॉर हेल्प, माय किंग एंड माय गॉड, फॉर टू यू आई प्रे। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन। परंतु जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक और चीज उसमें लिखा है, फॉर टू यू आई प्रे। अब वो सेकंड जो पंक्ति है, बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मैं तेरे से प्रार्थना कर रहा हूँ, उतना बोल के हम समाप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक और चीज लिखा है, फॉर टू यू आई प्रे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बट तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो थोड़ा हम ध्यान दें, तो हम कभी कभी प्रार्थनाएं तो करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाए तो 2, 3, 4 प्रकार के प्रार्थनाएं होती है। फर्स्ट होता है कि रिचुअलिस्टिक प्रेयर, मतलब कि हम एक रिवाज में हम कर रहे हैं कि सुबह उठ के प्रेयर करना है तो कर लिया, दोपहर को किया कर लिया, शाम को करना है कर लिया, संडे आए तो प्रेयर कर लिया। तो वैसा एक होता है कि जाना है तो प्रेयर करना है 4-5 लाइनें हैं, उस हिसाब से हम करते हैं। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ एक, ही इज नॉट जस्ट सेइंग वर्ड्स, वहां सिर्फ वो कुछ अपने अल्फाज या फिर कुछ या शब्द नहीं रख रहा, वो सीरियस होके, परमेश्वर मैं तेरे से कुछ बोल रहा हूँ, परमेश्वर आई एम जस्ट गॉड, आई एम स्पीकिंग टू यू। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें एक चीज समझना है कि हमारे जो कभी कभी प्रार्थनाएं होती है, सोने से पहले 2 मिनट प्रार्थना करके हम सो गए, वो एक रिवाज जैसा नहीं। हमको समझना है कि whenever we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कोई एक काल्पनिक एक वस्तु या फिर काल्पनिक कोई एक चीज से नहीं, we are praying to the God, the creator, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। We are putting our matters in front of the God who created everything, जिसने सबको सृष्टि किया है। He can't be confined within anything। हम एक और भजन संहिता में पढ़ते हैं, उनके कान है वो सुन नहीं सकते। So there are idols in this world, many people serve idols। बहुत लोग इस संसार में मूर्तियों की पूजा करते हैं, परंतु हम ऐसे कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते। We pray to the God who created everything। So psalmist is making here very clear, God, I am praying to you alone I pray। God, I pray to you alone। So first of the, एक तरीके का प्रेयर हो सकता है रिवाज, रिचुअलिस्टिक प्रेयर हम जो कहते हैं, तो वैसा हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। जब हम प्रेयर करें, जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरे सामने अपने वी आर पुटिंग आवर मैटर रिक्वेस्ट, उसको सुन। सेकंड होता है एक इंस्ट्रक्शनल प्रेयर होता है। इंस्ट्रक्शनल प्रेयर हम कभी कभी करते हैं। वो कैसा होता है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर को नहीं देख रहे, आजू बाजू लोगों को देखकर उनसे प्रेयर कर रहे हैं। मतलब प्रेयर तो नहीं, परंतु हम बोलते हैं कि परमेश्वर तू है, जो लोग जो गलत काम करते हैं उनको तू सही करता है, वैसा करता है। हम प्रेयर तो ऊपर, हमको लगता है कि हम ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हैं, बट मे बी वी आर इंस्ट्रक्टिंग अदर्स, हम दूसरों को वहां पर ज्ञान दे रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वैसा भी नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं एक जो घटना है यीशु मसीह वहां पर बताते हैं, जब हम जाते हैं, एक पैराबल है, एक दृष्टांत है, लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें पंक्ति और उसके 18वें अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति से हम पढ़ते हैं। When we turn attention to Luke chapter 18, there's a parable which we see there
फ्रॉम वर्स 9 onwards 9 to 14, यहाँ पर पैराबल ऑफ द फैरिसी एंड द टैक्स कलेक्टर, वहां पर हम देखते हैं कि वो दो व्यक्ति लोग थे, एक फारसी था और एक टैक्स कलेक्टर था। जो टैक्स कलेक्ट करता है, दो लोग जाके वहां पर प्रेयर कर रहे हैं, और उन दोनों की प्रार्थनाओं का अगर हम डिफरेंस देखें तो थोड़ा हमको वहां पर पता लगेगा। 9वीं पंक्ति से हम जब पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु ने उन लोगों के लिए भी जो अपने आप को तो नेक मानते थे और किसी को कुछ नहीं समझते, ये दृष्टांत कथा सुनाई। मंदिर में दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक फारसी था और दूसरा कर वसूलने वाला। वह फारसी अलग खड़ा होकर यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे लोगों जैसा डाकू, ठग या व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस कर वसूलने वाले जैसा हूं। तो वो फारसी इस प्रकार प्रे कर रहा, मैं ऐसा कोई गलत इंसान नहीं हूं, और ये जो टैक्स कलेक्टर है या फिर कर वसूली करने इसके तरह भी नहीं हो। दूसरों को मतलब चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा होगा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी समूची आय का 10वां भाग देता हूँ, मैं टाइट देता हूँ। किंतु वह कर वसूलने वाला हो, द अदर टैक्स कलेक्टर, जो दूर खड़ा था और यहाँ तक कि स्वर्ग की ओर अपनी आंखें तक नहीं उठा रहा था, अपनी छाती पीटते हुए बोला, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो हम दो प्रार्थनाएं देखते हैं। एक वहां पर फारसी, वो प्रार्थना तो कर रहा था, उसके हिसाब से वो ऊपर वाले को कर रहा था, परंतु वो दूसरे को सुनाने के लिए कर रहा था। और दूसरा जो हम देखते हैं टैक्स कलेक्टर, जो कर वसूलने वाला, वो कैसे प्रार्थना कर रहा था, वो ऊपर देख के, परमेश्वर को देख के प्रार्थना कर, तो बोला, परमेश्वर तू जानता है मेरी अवस्था क्या है, तू मुझे सही कर, और तू मुझ पापी पर दया कर। तो हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए, परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर के ओर, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मेरी ये अवस्था है, तब जाकर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो जिस प्रकार यहाँ पर दाऊद कहता है, हियर माय क्राई फॉर हेल्प, माय किंग एंड माय गॉड, फॉर टू यू आई प्रे। हमारी प्रार्थना उस प्रकार होनी चाहिए। दूसरी एक चीज मैं झट से बोलकर 2-3 मिनट में बैठ जाना चाहूंगा। 8वीं पंक्ति में हम इस प्रकार वहां पर पढ़ते हैं, Psalms 5 verse 8, ज़बूर 5 उसका 8वां पंक्ति, वहां पर इस प्रकार, हे यहोवा, तू मुझको अपनी नेकी का मार्ग दिखा, तू अपनी राह को मेरे सामने सीधी कर, क्योंकि मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। उसका एक और हम देखें तो, लीड मी इन द राइट पाथ, मुझे सही मार्ग में चला। और यहाँ पर एक और तरीके से लिखा हुआ है कि मेक दाई वे स्ट्रेट बिफोर माई फेस, आपने जो राह को सीधा करके दिखा, सीधा जो मेरी राह है उसको सीधा कर। भजन संहिता 71 उसके पहले पंक्ति में क्या में उसका वर्स 1, Psalm 71 verse 1 में भी सिमिलर एक फ्रेज यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं, इन यू लॉर्ड आई हैव टेकन रेफ्यूज, लेट मी बी नेवर पुट टू शेम। और मैंने उसका किंग जेम्स वाला वर्जन पढ़ा, तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि इन यू लॉर्ड आई हैव टेकन रेफ्यूज, लेट मी बी नेवर पुट टू कंफ्यूजन। तो हम जब अच्छे मन से परमेश्वर के सामने आके प्रेयर करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे आजू बाजू जब सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परमेश्वर ऐसा कैसा हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो व्हेन वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ गॉड, कभी कभी लोगों की बातें होगी, कब सिचुएशंस होंगे, हम भटक जाते हैं, परमेश्वर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हो रहा। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी कम परमेश्वर के सामने एक अच्छे मन के साथ आते हैं, और परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर से अपने जो रिक्वेस्ट रखते हैं, और हम परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, तो गॉड विल नेवर अलाउ अस टू बी इन कंफ्यूजन। कभी कभी थोड़ा दुख पीड़ा हो जाएगा सिचुएशन को देख के, परंतु हम परमेश्वर के सामने आकर अपने घुटनों को टेकेंगे, तो गॉड विल रिमूव ऑल कंफ्यूजन। जो भी हमारे जो कंफ्यूजन्स है, गॉड विल रिमूव इट, एंड गॉड विल अगेन गिव अस द एश्योरेंस कि ये बात में चल, ये राह में चल, यही तेरा रास्ता है। और जिस प्रकार मैंने बोला कि हमको एक रिचुअलिस्टिक प्रेयर नहीं करना, ये कोई एक इक्वेशन नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हम देखते हैं उसके कई सारे एग्जाम्पल, बट एक एग्जाम्पल मैं उसका एक जो एग्जाम्पल लेके बैठना चाहूंगा। हम देखते हैं स्केवा के बेटों के बारे में, और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं वहां पर क्या हुआ, स्केवा के बेटे क्या करने लगे। जिस प्रकार वहां पर पौलुस और वो सब प्रार्थना करते, वो भी यीशु के नाम से जाकर करने लगे, परंतु क्या हुआ, उनको वहां से भागना पड़ गया। तो वो जाके कोई एक तंत्र मंत्र जैसा नहीं, बट इट्स मोर ऑफ अ रिलेशनशिप, एक परमेश्वर के साथ संबंध में आकर
हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और परमेश्वर हमको चलाएगा. God will lead us, God will guide us all the way through. May God bless you with these, bless you all with these words. आगे का समय we'll spend some time. If anyone has any prayer request, किसी को कोई prayer request है या फिर ये गवाही का समय है, if anyone wants to share anything, we have a prayer topic. Daniel uncle, Catherine auntie and Joshua are traveling. We'll be praying for Joel uncle's health. Anything else if you have, now is the time. अभी का समय है. If you want to share any praise report, परमेश्वर ने कुछ आपके जीवन में कुछ अच्छा किया, चंगाई किया है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, ये वो समय है. I believe it's no. So at this time, I would request Ben, if you can come forward, we'll be praying for some of the prayer topics which we are all aware. अभी Ben आगे प्रार्थना करेंगे. So Catherine auntie and Joshua, they are traveling. Let's pray for Joel uncle's complete recovery. Let's also pray for many among us who were sick and who need a healing touch. And also especially Pastor Joel and Tim, they are traveling next week. So let's pray for these prayer points. Thank you, Jesus, for this beautiful day, Lord. We thank you so much for this opportunity we have at Hometown Church to praise you, Lord. We ask for your continued blessings upon us, Lord. Lord, we just pray for those who can't be here tonight. We think of Coster, Jemima, Lord, as well as George and Elizabeth and Joseph and his wife Elizabeth. Lord, we just pray for healing for all those who are sick and suffering. Lay your hand upon them, Lord, and heal them, Lord. We think of Joel as we had a scary moment this week. We thank you that he is okay, Lord. And we just ask for your continued healing for him. And Lord, we think of the families that lost loved ones in Karachi this week. We just ask for your peace and comfort. Lay your hand upon them. Just grant them the peace and the comfort that they need, and let them know that their loved ones are with you, Lord. We pray for Pastor Tinku and Tim, who are going to Africa in the coming weeks. We pray for a successful trip for them, and that they spread your word gracefully. We pray for Catherine and Joshua, who will be coming from Karachi this week. Lord, we pray for no hiccups in their travel. May they be safe and healthy when they arrive here, and we pray for no disruptions and just a safe plane ride, Lord. We pray for all those that are in our hearts and minds that haven't been mentioned, Lord, and we ask this all in your precious name. Amen. At this time, I would invite Brother Stephen. He'll be coming forward and we'll be spending some time praising God. हम ज़बूर 121 गाएंगे. अखियां चुकदा हां मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनूं पुकारा. मेरी माता नू रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया. तेरे पैरां नू देवे
खलारा मदद लई मैं किस ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरां नूं देवे खलारा मदद लई किस नूं पुकारां तेरे पैरां नूं देवे खलारा ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਕਦੀ ਊਂਘ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਕਦੀ ਊਂਘ ਲਾਵੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਰਖਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਸੇਦਾ ਹਰਦਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਸੇਦਾ ਹਰਦਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਖੌਫ ਖਾਵੇਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਖੌਫ ਖਾਵੇਗਾ
So the next song is actually a ghazal that I'll be singing. When we read Mark chapter 14, verse 37, then he returned to his disciples and found them sleeping. Simon, he said to Peter, are you asleep? Could you not keep watch for 1 hour? So this song is going to be according to the Lenten season that we are having these days. यसु कहंदा निके सुत्तियां नूं तुसी नाल मेरे ना जाग सके चलो चलिए अज दुआ दे ले चलो चलिए अज दुआ दे ले गत समय वाले यारो चलो चलिए अज दुआ दे ले गत समय वाले यारो अज कटिया वक्त गुजार लिए अज कटिया वक्त हुंदा हुक्म जे ना कदी बाप वालों किंज फड़ दे मैनू राज मियां हुंदा हुक्म हुंदा हुक्म जेना कदी बाप वालों किंज फड़ दे मैनू राज मियां होनी बाप दी मर्जी पूरी सी होनी बाप दी मर्जी पूरी सी जगत सतावेला कल यारो अज कटिया वक्त गुजार लिए अज कटिया वक्त गुजार लिए जेड़े है कहने भले यारो चलो चलिए अज दुआ दे ले गत समय बाद भले यारो मैनू करन हवाले गैरां दे वेखो आप यहूदा आया जे मैनू करन हवाले
आज कठिया वक्त गुजार लइए जिवे है कहने दो पल यारो चलो चलिए अज दुआ दे लई इस बाग दे पल यारो यसु कहंदा निके सुत्तियां तुसी नाल मेरे ना जाग सके यसु कहंदा आन के सुत्तियां तुसी नाल मेरे ना जाग सके तुसी पल दो पलते जागना सी तुसी पल दो पलते जागना सी सोना कलियारो तुसी पल दो पलते जागना सी सोना कलियारो तुसी कटिया वक्त गुजार लइए अज कटिया वक्त गुजार लइए जिवे है पल यारो चलो चलिए अज दुआ दे लई चलो चलिए अज दुआ दे लई रख सबने पार पल यारो रख सबने पार पल यारो रख सबने पार पल यारो Praise the Lord. How many of you enjoyed that wonderful songs? जय मसीह की कितने लोगों ने जो अभी गीत गाए उस समय प्रभु की आराधना कर पाए I can sit like for a couple of hours just listening to these types of songs. मैं ऐसे गीत सुनकर घंटों बैठ सकता हूँ I don't know about you, but I really enjoyed. Thank you, Brother Stephen, once again. मैं आप सबके बारे में तो नहीं जानता परंतु मैं ये गीत सुन रहा था प्रभु मैं बहुत ही आनंदित हो रहा था Because when I grew up, I have heard songs like this and it just brings back a lot of memories. क्योंकि मैं जब जिस समय मतलब जिस जगह में मैं पैदा हुआ और अपने जो जवानी मैंने काटी उस समय ऐसे ही गीत सुनते थे और उस समय गीत गाकर हम प्रभु की आराधना करते थे What a reminder that we need to spend time in prayer. और कितना अच्छा एक रिमाइंडर जो दूसरा गीत हमने यहाँ पर जो था वो हमको फिर से याद दिलाता है कि प्रभु के हुजूर में आकर प्रभु के सामने प्रभु के साथ हमको समय बिताना है प्रार्थना में लीन होना I है want to greet you all, those who have come for this service evening, and I pray that the rest of the service will also be a blessing in your life. आप सभी को फिर से यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी वंदनाएं रखता हूँ और मैं इस प्रकार इच्छा रखता हूँ कि और आगे का समय बहुत ही आशीषमय होगा I've been dealing with some sickness last 2 weeks. पिछले 2 सप्ताह से मुझे भी शारीरिक तौर से मैं इतना सही नहीं था And today I'm glad. I really wanted to be here because next service I won't be here. And मैं बहुत ही पिछले 2 सप्ताह से शरीर में थोड़ा था कमजोरी परंतु मैं बहुत इच्छा थी कि मैं आ जाऊं क्योंकि अगले बार 23 मार्च को मैं यहाँ पर Just like you heard and you prayed, I request your prayers as next Wednesday, not this Wednesday, next Wednesday, about 11 people from different parts of the country we will be going to
Uganda, and then the team will come back, but myself and few people will be going further to Congo. जिस प्रकार आपने कई बार सुना, अगले सप्ताह 19 तारीख को वेडनेसडे हम 11 लोगों का एक टीम है, हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे। उसमें से कुछ लोग कॉन्गो में जाकर वापस आ जाएंगे, परंतु कुछ लोग कुछ लोग युगांडा जाकर वापस आ जाएंगे और कुछ और लोग रहेंगे जो DR कॉन्गो भी रहेंगे। तो 20 दिन का एक ट्रिप रहेगा। So I request all of your prayers. मैं आप सभी की प्रार्थनाओं की विनती करता हूँ। And I am assured that your prayers will be a great blessing personally for me. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सबका प्रार्थना मेरे लिए बहुत ही एक आशीष का कारण This बनेगा। evening, let's turn our attention to the Bible. Turn with me to James chapter 2, and I would like to read verses 26. और आज शाम के समय याकूब के दूसरे अध्याय उसके 26वें पंक्ति की ओर अपने ध्यान को लाएं। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 26 पद. For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। I came across a story which you also might have heard. और मैंने इस प्रकार एक कहानी सुनी जो आपने भी कभी सुनी होगी। There were two farmers who were having fields adjacent to each other. दो किसान लोग थे, उनकी खेतें आजू-बाजू थी। And they both were praying that God will send rain at the right time. दोनों किसान लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर बारिश को बरसाएगा। So one farmer prayed and he waited. एक किसान ने प्रार्थना की और उसके लिए वेट करते रहा, उसके लिए वेट He did not do anything else, he simply waited. और उसने प्रार्थना की कि बारिश हो और बारिश के लिए ऐसे देखकर The बैठा। other farmer prayed, then he went out. और दूसरे किसान ने प्रार्थना की कि बारिश हो और फिर बाहर गया। He prepared the land. और उसने जो उस टाइम He plowed the soil. और जो जमीन थी उसको हल किया और थोड़ा मिट्टी को He लग made the गया। ditches so that water can flow. और उसने वहां पर नालियों को रखा ताकि बारिश आए तो पानी वहां से बह जाएगी। So he expected God to answer his prayers. और वो इस प्रकार इच्छा भी रख रहा था कि परमेश्वर बारिश भेजेगा और अपने आप को तैयार कर Then finally rain came. और जब बारिश हुआ, The farmer who prepared the field received a great harvest that year. जो किसान ने एकदम तैयारी की और जो हल को जो है और जिसने नालों को रखा, उसको बहुत ज्यादा अनाज मिला। Because he put his faith into action. क्योंकि उसने उस समय अपने विश्वास को कर्म की ओर उसने The other farmer who only prayed, और दूसरे जो किसान से उसने सिर्फ प्रार्थना की, nothing happened. और उसका कुछ नहीं हो पाया वहां पर। Rain came and he was unprepared, there was no harvest. और बारिश हुई परंतु उसने कुछ तैयार नहीं की थी, मतलब वहां पर जमीन को, तो उसको कुछ अनाज नहीं मिला। We all pray. हम सब प्रार्थनाएं करते हैं। But if it is something really miraculous, God may do. और अगर कुछ बहुत ही एक बड़ा चमत्कार है तो परमेश्वर करेगा। But there are a lot of things where we need to act out or take the first step. परंतु कई बार हम प्रार्थना ही नहीं, परंतु प्रार्थना के साथ कुछ कर्म या फिर कार्य भी हमको करना रहता है। I normally say if you are praying for a better job, और मैं खास तौर से कहता हूं कि अगर आप एक प्रार्थना कर रहे हैं एक और ऊंची जॉब के लिए या फिर which requires better education, maybe another degree or something like that, certification maybe. नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि एक अच्छी नौकरी जिसके लिए कुछ हमको सर्टिफिकेशन डिग्री कुछ और लेनी पड़ेगी। I'm not saying God cannot give you a job without anything. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको परमेश्वर नौकरी नहीं देगा, डिग्री चाहिए उसके लिए। But one thing you can do, परंतु एक चीज आप कर while सकते you हैं, pray, आप प्रार्थना कर रहे हैं नौकरी के लिए, you also start studying. और वो अच्छी नौकरी के लिए आप God will पढ़ाई give you कर- success in what you endure, like whatever you do. और परमेश्वर आपको उसमें सक्सेस देगा या फिर परमेश्वर आपको उन्नति देगा जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। Along with that, God can answer your prayer for a new job also. और उसी के साथ साथ परमेश्वर आपको नई नौकरी भी देगा। This evening, I want to talk about this whole subject of faith without works. और मैं आज शाम के समय आपको ये टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगा कि विश्वास परंतु कार्य नहीं, बिना कार्य के विश्वास। Bible says, as we read in the verse here, यहाँ पर प्रभु कलाम कहता है जिस प्रकार हमने यहाँ पर faith without works is dead. यहाँ पर इस प्रकार का विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। And what is used as an example is a very serious issue. और जो भी एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर उपयोग किया, बहुत ही एक सीरियस या फिर एक गंभीर मैटर है। It says, just like the body without spirit is dead. और उदाहरण के तौर पर यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। So if just like a body without spirit is dead,
it is compared in a similar way that if faith does not have work, it is dead. तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इस प्रकार कहा गया कि देह आत्मा बिना मरी हुई है, उसी प्रकार हमारे में विश्वास है परंतु हम कुछ कर नहीं कर रहे, कार्य नहीं कर रहे, तो वो सेम उदाहरण, वही उदाहरण वहां पर यूज हो रहा है। What a dead body is useless. और हम जानते हैं कि एक जो मरा हुआ शरीर, उसका कोई You उपयोग may नहीं। say anything, it won't respond. अगर आप एक मरे हुए शरीर वहां पर पड़ा उससे कुछ भी बोले, Many people claim to have faith, but it is important for us to check if we have an active living faith or a dead faith. कई लोग कहते हैं विश्वास तो है परंतु आपको देखना है कि सही में वो विश्वास सही वाला विश्वास है या फिर ऐसे ही एक विश्वास जिसके साथ कुछ कार्य नहीं हो रहा। Here, James is encouraging a faith which is followed by action. यहाँ पर याकूब इस प्रकार प्रोत्साहन दे रहा है कि हमारे अंदर ऐसा एक विश्वास हो जो विश्वास ही नहीं परंतु विश्वास के साथ हम कर्म भी करते रहें। First thing he says is a faith which is without works is useless. और पहली चीज जो याकूब यहाँ पर दर्शाता है वो इस पर कैसे कहता है, याकूब विश्वास विकर्म बिना मरा हुआ है। Verse 14 says, 14वां पंक्ति उस दूसरे what good it is, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? And here the example he brings up is if somebody comes to you, और यहाँ पर एक उदाहरण के तौर से इस प्रकार कहा गया कि कोई आपके पास आ रहा or है if you see somebody who is hungry, और आप किसी को देख रहे हैं जो कि भूखा है and what do you say? Go in peace. और आप वो भूखे व्यक्ति को देख के कहते हैं आप शांति से जाएंगे, The one who doesn't have anything, you say, go in peace, God bless you. और जो एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं, भूखा खड़ा है, उससे आप ऐसे कहेंगे कि आप शांति से जाएं, But don't do anything. और कुछ कार्य नहीं कर रहे आप परंतु बोल रहे हैं कि शांति से जाएं। Here it says that it is useless. और यहाँ पर इस प्रकार क्या है कि उसका कोई अर्थ नहीं। Your words are meaningless in that case. आपकी जो बातें हैं, जो लफ्ज हैं, वो उसका कोई अर्थ नहीं। Faith will meet the real needs of people. और अगर आपने सही विश्वास है तो लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। So what happens is, God met our biggest need. और परमेश्वर ने हमारी जो सबसे बड़ी जरूरत थी उसको देखा। What was our biggest need? हमारी सबसे बड़ी जरूरत संसार What was the में biggest need of humanity? और संसार में लोगों की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? A mankind which was lost because of sin. और जो मनुष्य जाति जो कि पाप में था, They needed a savior. और उनको एक उद्धार करता चाहिए। And Father in heaven sent His only begotten Son, Jesus Christ, into this world. परमेश्वर जो स्वर्ग में थे उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। God did not say, go in peace. और प्रभु परमेश्वर ने नहीं कहा तुम मनुष्य जाति शांति में रहो। And here it says that in the same way, if you are not acting upon, it does not have works, it is dead by itself. और यहाँ पर भी इसी प्रकार लिखा है कि अगर आप में विश्वास है परंतु कर्म ना करता हो तो उसका क्या लाभ, वो एक और वो मरा हुआ है। So here this person is cold, he doesn't have clothes. और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो उसके पास कपड़ा नहीं और वो He doesn't have food to eat. और उसके पास खाने के लिए कुछ वस्तु नहीं। And what is the response given? और यहाँ पर क्या उत्तर दिया जाता है इस बेचारे Go व्यक्ति in को? peace, stay warm and be well fed. और यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति जो भूखा है कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। How is that possible? कैसे हो पाएगा? Many times in our life also, हमारे जीवन में कई बार we act like that. हम भी उसी प्रकार से, But Bible teaches us, परंतु प्रभु कलाम दिखाता है हमको as far as possible, जिस प्रकार जितना आपसे हो पाए। God is not asking you to meet the hunger of the whole world or प्रभु anything like परमेश्वर that. ये नहीं कह रहा कि संसार में जितने भी भूखे हैं सबको He's not asking you to buy clothes for everyone in this ऐसा world. प्रभु नहीं कह रहा कि जितने भी नंगे हैं उन सबके लिए कपड़े खरीद के दो। But God has given us some capacity. प्रभु परंतु परमेश्वर ने हमें कुछ काबिलियत दी है। So we have to make sure that our faith is not reflected only by our words. और हमको ये ध्यान देना है कि हमारे में विश्वास है परंतु हम वो विश्वास को सिर्फ बातों से ही सीमित नहीं रखते। It is not by simply saying nice things. और वो सिर्फ ये इससे नहीं हमको दबाना कि हम सिर्फ अच्छी बातें बोले। And when we see somebody who is cold outside, और हम देख रहे हैं कोई एक बाहर जो एक ठंड में है he is shivering. और वो कांप रहा है ठंड में, Don't say God bless you, God may give you warmth.
और उसको ऐसा ना बोले कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको कपड़ा If you have something देगा। to give, give it. अगर आपके हाथ में कुछ है, आप कुछ चीज के काबिल हैं तो कुछ उसके लिए करें। If you see that the person is hungry, और आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति भूखा है, and if you have the ability to buy a sandwich or something and give to him, just you have to do it. That's the real faith in action. और आप इस लायक हैं कि उसको कुछ खरीद के दे, बर्गर कुछ खरीद के दे तो आप करें। What happened? Okay. I thought somebody is disagreeing with the Bible, not with me. So the question is our faith making difference in other people's life, the way we live? तो यहाँ पर इस प्रकार बड़ा प्रश्न है कि हमारा विश्वास हमारे आजू बाजू वाले लोगों के जीवन में कुछ फल ला रहा है या फिर वो बिना कोई अर्थ के है। Sometimes as Christians we are good in advising and telling others. हम जो मसीह में हैं, हम कभी-कभी बहुत अच्छा कार्य करते हैं दूसरों को ज्ञान देने में या फिर बड़ी-बड़ी बातें करने में। But Bible teaches us that we need to practice our faith परंतु प्रभु का कलाम कहता है कि हम ये विश्वास को कार्य में लाएं by action. और हमारे एक्शंस के द्वारा। Otherwise, as it says here, it's a useless faith. और अगर नहीं ला रहे तो यहाँ पर जिस प्रकार लिखा हुआ है कि ये मरा हुआ विश्वास समान है। The second thing James says there, याकूब यहाँ पर दर्शाता है। when we read from verse 18 to 20, 18वें पंक्ति, याकूब दूसरा अध्याय 18वें पंक्ति से हम पढ़ें। but faith without work is dead now. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। But someone will say, you have faith and I have works. एंड कोई कहता है कि अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे। Show me your faith without works and I will show you faith by my works. और यहाँ पर इस प्रकार तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। You believe that God is one good, even the demons believe that. और तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है। So here, intellectually having some belief in mind is not enough. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि हमारे दिमाग में हमको पता है कुछ चीजें सही है, उसका कोई अर्थ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। Bible says even demons believe that. और प्रभु कलाम कहता है कि वो तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास, Even though they don't follow God or obey God, but they also believe there is a God. परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की बातों में नहीं चलते, परंतु विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। But our faith needs to be demonstrated by actions. और अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा हमको दिखाना है। A useless faith is no faith at all. और जो विश्वास उसके साथ कर्म नहीं, वो एक उसका कोई अर्थ नहीं, बिना उसका कोई it's useless. It says that your faith is not resulting in changes in your own life, which ultimately impacts other people and touches other people. It is a dead faith. और हम कहते हैं कि हमारे में विश्वास है, परंतु उसके द्वारा, वो विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं, हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं उनके जीवन में हमारे द्वारा कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो वो व्यर्थ है, वो मरा हुआ विश्वास है। Let me ask you, the people who know us, और मैं इस प्रकार पूछना चाहता हूँ, जो लोग हम सबको जानते हैं, and the people who know us very well, और जो लोग जिनको हम अच्छे से जानते हैं, do they one day think about us? और वो लोग जब हमारे बारे में सोचते हैं, What do they think? और वो क्या सोचते होंगे, एक क्षण जरा। Do they say that person is a crazy religious fanatic? और वो इस प्रकार सोचते हैं कि वो सिर्फ एक धार्मिक और वो एक क्या कहते हैं, पागल धर्मी जैसा घूमते रहता है, धार्मिक व्यक्ति जैसा। He talks a lot. और वो धर्मी व्यक्ति पागल जैसा बहुत बड़ी बातें करता He है, claims big things. बड़ी चीजों के बारे में वो बोलता है। वही हमारे हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना कि बात लातों का भूत बातों से नहीं मानता। और हिंदी में इस प्रकार कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। So some people are like they are just like that. और कुछ लोग उसी प्रकार होते हैं, They will say a lot of things, और बड़ी बातें तो होगी, but through their actions they don't reflect it. परंतु उनके कर्मों में वो जो बड़ी विश्वास जो करते हैं कुछ दिखता नहीं और प्रकट नहीं होता। How can we touch other people? और हम दूसरे लोगों के जीवन को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? When our faith is really becomes actionable. और जब हमारा विश्वास के द्वारा हम कर्म करने लगते हैं, तब जाके दूसरे। When I say this, what do you understand? और मैं ये जब कहता हूँ, आप क्या समझते हैं? I'm saying that our Christian life should not be a bunch of theory
Rather, it should be a practical life. और मैं इस प्रकार कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मसीह जिंदगी है वो सिर्फ कुछ ज्ञान की बातें हमारे दिमाग में है, परमेश्वर की बात वो नहीं, परंतु हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग स्पर्श होने चाहिए। Jesus did not just teach theory. और यीशु मसीह ने आके सिर्फ बातें नहीं कही, थियरी नहीं समझाया। People who watched Jesus, और जो लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह को देखा, they said, there is something different with this. और वो लोग यीशु मसीह को देख के कह रहे थे कि इस व्यक्ति में कुछ अलग है। Even the teachers of the law said, this man speaks with authority. और जो न्याय के जो विद्वान लोग थे वो भी कहते थे यीशु मसीह को देख के ये कुछ इसमें कुछ अलग है। Jesus spent most of his time not with the elite of the society, but the poor and the downfall of the society. और हम देखते हैं यीशु मसीह जो अपना सबसे ज्यादा समय कोई समाज के बड़े ऊंचे स्तर में जो लोग हैं उनके साथ नहीं, परंतु जो सबसे नीचे स्तर में जो लोग हैं उनके साथ। He only, as far as I know, he only stayed at Zacchaeus' house for one night. और हम जितना मैं जानता हूँ जक्कई जो थोड़ा बड़ा व्यक्ति था उसके घर में सिर्फ एक ही रात रहा। He was a rich man. वो थोड़ा धनी व्यक्ति था। And the reason why Jesus went there, और यीशु मसीह उसके घर में जाने का कारण ये था, he wanted to save him. और यीशु मसीह उसको उद्धार की ओर लाना चाहता था। So and he was, this Zacchaeus was considered as a tax collector. और जक्कई वहां पर जो ये टैक्स चुंगा चुंगा इकट्ठा करने वाला था। And the people hated him. और लोग उसको बहुत नफरत करते थे। He was a rich man. वो बहुत धनी व्यक्ति था। Jesus went to his life, it transformed. और यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आया और उसके जीवन But in Bethany there was a family where there were 3 siblings. और बेथनी में एक परिवार था जहाँ पे 3 भाई बहन लोग थे, Martha, Mary and Lazarus. मार्था, मेरी, मरियम और I don't think they were the richest people of that village. और मुझे इतना पता है कि वो सबसे अमीर या धनी व्यक्तियों में से नहीं थे वहां पर। But Jesus frequently visited their place. परंतु हम प्रभु के कलाम देखते हैं कई बार यीशु मसीह उनके घर में गया। Jesus visited people who were rejected. और यीशु मसीह ऐसे लोगों के घर में गया जिनको समाज से ठुकराया हुआ था। And Jesus said, I came for the lost. और यीशु मसीह आके बोला मैं जो खोए हुओं के लिए मैं आया। It is not the well who need a doctor, और जो एकदम जो सही है उसको डॉक्टर की जरूरत but नहीं, it is a sick who need a physician. परंतु जो बीमार है उसको डॉक्टर की जरूरत है। Lot of times we tend to think about how we can be safe. And कई बार हम सोचते हैं हम किस प्रकार सुरक्षित रहें, But when we really have our faith in Jesus, परंतु हमारा अगर सही में यीशु मसीह में विश्वास है it will turn into actions. और वो परंतु कार्यों की ओर बढ़ने लगे, कार्यों में दिखेगा। I'm not saying you all don't have actions, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सब अच्छा but कार्य नहीं करते। on the basis of the word of God, प्रभु के कलाम में रख अपने। if you are somebody who is doing very well, I want to encourage you to do more for the glory of अगर आप God. प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, आपका विश्वास कार्य में प्रकट है तो और करें, मैं आपको प्रोत्साहन देना So चाहता हूं। faith without works is dead. तो अपना विश्वास है परंतु कार्य नहीं। So first we हमारा वो saw विश्वास। faith without works is useless. पहला हमने देखा कि विश्वास कर्म के बिना उसका कोई अर्थ नहीं, Second, it's dead. और दूसरा हमने देखा कि वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। The third thing I want to bring to your attention, तीसरा चीज जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, our faith must be proven or it should be shown by actions. और तीसरा है कि हमारा जो विश्वास है वो सही में जांचा और परखा हुआ होना चाहिए। It says that Abraham, our father, was justified by works in the offering Isaac his son on the altar. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा। You see that faith was active together with his works, and by works faith was made complete. 22वें पंक्ति में सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। Verse 23 says the scripture was fulfilled, saying Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. 23वें पंक्ति में पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और ये उसके लिए See, धर्म। Abraham was asked by the Lord to sacrifice his son Isaac. और इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला कि तू अपने पुत्र आइसक को जाकर बलि दे। Everybody knows और हम सब जानते हैं ये घटना। how many years Abraham and Sarai waited before they got the son Isaac. और इब्राहिम और सारा उनकी बीवी कितने साल एक पुत्र के लिए बाट जोते रहे। Everybody knows that they had to wait a long period of और time. हम सब जानते हैं कि उनको बहुत समय उनको वहां पर Finally, the promise was fulfilled. और वो काफी समय के बाद वो जो Now God is asking not Ishmael but Isaac. परमेश्वर कह रहा है कि इश्माइल को नहीं परंतु तुम इसहाक को लेके जाओ और आइसक को लेके जाओ और उसका बलि करो। But Abraham
believed God. परंतु इब्राहिम ने परमेश्वर को We all know that Isaac was taken up on the mount. हम जानते हैं कि इब्राहिम से को लेके जा पर्वत के ऊपर ले गया। Abraham was almost ready to, with the knife, to cut him. और इब्राहिम एकदम तैयार था वो चाकू से मार डालने। That's the time when the voice came from और heaven. उस समय हम देखते हैं एक आवाज स्वर्ग से आई। And God gave another sacrifice animal. और वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने दूसरी एक बलि का वस्तु वहाँ पर Isaac किया। was not sacrificed in that sense, literally. और इसहाक का सही में बलि तो नहीं हुआ। But it says that by faith he sacrificed Isaac. परंतु वहाँ पर कहते हैं कि विश्वास से उसने उस वेदी पर चढ़ाया और विश्वास से बलि So what happened? Because he acted out in faith, और क्योंकि उसने विश्वास पर चला God, he believed upon God. और उसने परमेश्वर पे भरोसा किया It says Abraham was called as God's friend. और इस कारण इस प्रकार कहलाया गया कि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था, मित्र कहलाया गया। And then it says, you see that a man is justified not by faith alone, but by works also. और उसके बाद इस प्रकार लिखा है कि सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। You have to understand हमको ये समझना है what happened in that place. और वहां उस जगह पर क्या हुआ। Abraham had all reasons to say no, God. इब्राहिम के पास सब न्याय था और न्याय से कह सकता था परमेश्वर नहीं मैं ऐसा कबली नहीं But he करूंगा। trusted God. परंतु उसने परमेश्वर पर In विश्वास the book of Hebrews, इब्राहिम के पत्री में it says that he believed even out of ashes, God can bring back Isaac. और उसको ये परमेश्वर पे विश्वास था कि इब्राहिम में लिखा है कि अगर वो मर भी गई इसहाक वो उसको जिंदा जिला के ला सकता है। He had a strong faith in God. उसको भी परमेश्वर पे विश्वास था। He knew that if God could give me Isaac at an age where I could, and my wife could not have a child, God is almighty, He can do और anything. उसको इब्राहिम को परमेश्वर पे इतना विश्वास था कि अगर परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे सकता है इतने एक बुजुर्ग के समय में मैं जब बुजुर्ग हो गया तो परमेश्वर कुछ भी आगे कर सकता है। This evening, let me ask you, और मैं इस समय आपसे पूछना चाहता हूँ are we willing to step forward in obedience to God? और हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहेंगे और परमेश्वर की जो भी कल्पनाएं हैं उसका पालन करके In our faith life, और हमारे विश्वास के इस दौर में this faith should not just be a theory, और ये विश्वास सिर्फ हमारे सर में या फिर दिमाग में सीमित ना रहे but it has to be reflected into our actions in life. और परंतु हमारे कार्यों में वो दिखाई देना चाहिए Because here it says, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार लिखा है if you just have faith, और आपके पास सिर्फ विश्वास है you don't have any other works, और आप कुछ वो विश्वास कार्य में नहीं प्रकट हो रहा it says it's like a dead body, और which doesn't have a spirit in it. और मरे हुए एक देह के समान है Our faith life has to be vibrant. और हमारा जो विश्वास का जो एक जीवन है बहुत ही एक वाइब्रेंट या फिर बहुत ही एक सुंदर होना चाहिए। In conclusion, और मैं समाप्ति की वजह से आ रहा हूँ I want to tell you, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ we need to have a living faith. और हमारा एक जिंदा विश्वास होना चाहिए What is the difference between a living faith and a static faith? और जिंदा विश्वास और एक स्थिर जो विश्वास मतलब जो सिर्फ एक विश्वास जो थियरी में उसके बीच में क्या अंतर है। If you have a living faith, और हमारे में एक जिंदा विश्वास है that faith will not remain static, but it will be taking action. और वो सिर्फ एक कहीं कुछ रुका हुआ नहीं परंतु हमारे जीवन में हम देखेंगे कि कार्य होंगे। This faith will not only believe, but it will also be a doing faith. और ये विश्वास सिर्फ एक विश्वास ही नहीं कि परमेश्वर कुछ करेगा परंतु हमारे कार्यों में भी देखने को दिखेगा। Living faith will transform us. और एक जिंदा विश्वास हमारे जीवन को परिवर्तन करता It रहेगा will revolutionize our life. और हमारे जीवन को पूर्ण रूप से वो बदल देगा It will change. और हमको बदल देगा वो। It will change the way we look at people and circumstances वो and situations. हमारे सोच को जिस प्रकार हम लोगों को देखते हैं हमारे आजू बाजू जो घटनाओं को देखते हैं वो पूरा बदल देगा जिस A प्रकार- living faith will look for opportunities. और एक जिंदा विश्वास देखेगा कहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं या फिर एक अपॉर्चुनिटी को If you have a देखेगा। dead faith, और हमारा मरा हुआ विश्वास you है। are not going to see anything around. और हमारे आजू बाजू हम कुछ भी नहीं देख Some people सकते। say, Pastor, I came to America. और कुछ लोग आके मुझसे कहते हैं पासवान साहब मैं अमेरिका तो आ गया When we were in India or other countries और जब इंडिया or में native place, और हमारे जगहों पे जब हम थे
Oh, we could do lot of हम things. वहाँ पर बहुत कुछ कर सकते थे। After coming here, हम यहाँ अमेरिका में आए, we can't do anything. हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। I tell you, मैं कहना चाहता हूँ, that means faith has got stuck somewhere. और उसका मतलब यही है कि हमारा विश्वास कहीं अटक गया, Somewhere the vibrancy in faith is gone. और कहीं तो वो विश्वास में जो एक जिंदा विश्वास था, A living faith will look and find और opportunities. एक जिंदा जो विश्वास है वो देखेगा और दूसरे आजू बाजू जो घटनाएं हैं उसमें से वो अपॉर्चुनिटी निकालेगा, It will see needs in front of और us. दूसरों की जरूरतों को देखेगा, और It will impact people's life. दूसरों के जीवन में एक रूपांतर परिवर्तन लाएगा। It will not only transform others, but they themselves will experience a transformation which is only possible through the working of the Holy और Spirit. दूसरों के जीवन को रूपांतर नहीं परंतु हमारे खुद के जीवन में भी रूपांतर हम देख पाएंगे, They will be able to experience that faith is alive. और वो भी विश्वास कर पाएंगे कि उनका जो विश्वास है जीवित है। If your faith is static, और हमारा ये जो विश्वास सिर्फ कहीं रुका हुआ है विश्वास, you won't see anything around. और हमारे आजू बाजू हम कुछ भी नहीं You देख feel पाएंगे, like everything is stuck. और हमारे आजू बाजू हम देखेंगे सब कुछ रुका हुआ है, You will walk through a lot of opportunities. और हम बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज या फिर जहाँ पर कुछ खो सकता है उन सब सर्कमस्टेंसेस से हम जाएंगे, No, you will see lot of needs around us, एंड बहुत सारे हम जरूरतों का हमारे आजू but you will not. It will not catch your attention. परंतु हमारे जो अटेंशन या फिर हमारे जो वो अटेंशन को नहीं कैच कर You पाएगा, will just walk through it. हम वो सब उसके बीच But when you में, have an active living faith, परंतु अगर हमारे में जिंदा विश्वास है, every time और हर बार God brings an opportunity in front of you, प्रभु परमेश्वर हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी लाएगा, एक, you will not only see it, और हम सिर्फ ना तो देखेंगे उसको, but you will act upon it. और उस पर हम कार्य भी करेंगे। The story of people who have done great things for God are not the stories of gigantic steps, but they are the stories of little step which people have taken. और हम देखते हैं सुनते हैं बड़े बड़े लोगों के बारे में जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, परंतु हम और ज्यादा उनके जीवन में देखेंगे तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की थी वो सब, When they took small steps of faith. जब उन्होंने छोटे छोटे जो कदम ली उठाए विश्वास से, When we say steps of faith, और जब हम कहते हैं विश्वास के कदम, not that faith was inside them only, और ऐसा नहीं कि उनके अंदर विश्वास ही था सिर्फ, but they took action. परंतु उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, God helped them, और परमेश्वर ने उनकी सहायता की, and God built them. और परमेश्वर ने उनको बनाया। Today we know them as great people who did great exploits for the Lord. और आज हम देखते हैं बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने जो बड़े बड़े कार्य किए This परमेश्वर के राज्य this में। evening, let me encourage you. शाम के समय में आप सबको Let our प्रोत्साहन faith देता be visible through love, हूं, और हमारा जो विश्वास है वो प्रेम के द्वारा सबको by दिखाई helping attitude or a service mentality, हमारा विश्वास जो है हमारे कार्य से दूसरे की हम सहायता by करते हैं। obeying God. परमेश्वर की जो कल्पना है उसका पालन करते हुए लोग देख पाए, That if when we reach that stage, और हम जब उस समय उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, उस कदम तक पहुंच जाते हैं, we will have an active faith. और हमारे में एक जिंदा विश्वास So remember, faith without works is useless. और जो विश्वास बिना कर्म के कोई उसका कोई अर्थ नहीं, It's dead. और वो मरा हुआ विश्वास, Our faith needs to be proven by action. और हमारा जो विश्वास है वो उसको प्रूव होना चाहिए। So we cannot say, I am a man or a woman of faith, and we are left with no action in our और life. हम ऐसा नहीं कहें कि हमारे में सिर्फ विश्वास है परंतु हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। These days, और आने वाले दिनों में may the Lord help us परमेश्वर हमारी सहायता करे, so that we will have actions in our faith life. और हमारे विश्वास के जीवन में कार्यों को ला पाए, परमेश्वर उस प्रकार हमको बल दे। We will be people who will understand and we will notice the needs which are around us. और हम इस प्रकार के लोग बन पाए कि हम आजू बाजू जो लोगों की जो जरूरतें हैं वो जान पाए और उस पर हम कुछ कार्य कर पाएं। Sometimes God brings small things in front of और us, कभी परमेश्वर हमारे सामने छोटी छोटी जरूरतों को लाएगा, लोगों की जरूरतों को लाएगा, which is nothing for us. और वो कुछ भी ज्यादा कुछ बड़ा And the नहीं। Lord will see if we will respond to that or not. परमेश्वर हमको देखेगा कि हम वो वैसे एक सिचुएशन में या फिर वैसे एक अवसर में हम किस प्रकार प्रतिक्रिया And when we करें, respond, और हम सही तरीके से प्रतिक्रिया then करें, God will bring bigger things. परमेश्वर वो छोटी नहीं और बड़े जरूरतों का हमारे पास लाएगा। But if we don't, परंतु हम किसी प्रकार से उस समय सिचुएशन में हेल्प ना कर पाए,
we will not have a living faith. और हमारे में एक जिंदा विश्वास नहीं हो पाएगा We will be having a very static faith. और हमारे में कोई तो एक रुका हुआ विश्वास जो कुछ करता था परंतु अभी नहीं So करता remember, just like a body without spirit is dead, और जिस प्रकार एक देह आत्मा के बिना मरी हुई एक देह our जैसी है faith without action or works is dead. That's what the Bible tells हमारे पास us. विश्वास है परंतु कार्य नहीं कर रहे वो मरा हुआ विश्वास समान है Hallelujah. Can we all close our eyes? अपनी आंखों को हम एक क्षण के लिए बंद करें Let's meditate upon what we have seen from the Word of God. और जो हमने सुना है जो प्रभु के वचन से जो सुना उस पर अपने ध्यान को लाएं Let us pray that God will continue to lead us and guide और us. इस प्रकार हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले दिनों में हमको चलाएगा Sometimes our Christian walk can see as a complicated thing. और कभी-कभी हमको लगता है कि हमारा मसीह जिंदगी बहुत ही It is not complicated. बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा परंतु इस प्रकार नहीं है Jesus calls us to follow Him. और यीशु मसीह ने हमको बुलाया था कि हम उसके पीछे पीछे चलें He wants us to be His hands and feet in this और world. यीशु मसीह चाहता है कि हम यीशु मसीह के हाथ और पैर बने इस संसार He में। wants us to invite others. और यीशु मसीह चाहता है कि हम और दूसरों को बुलाएं And He wants us to spend time with Him. और यीशु मसीह चाहता है हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं He wants us to be connected to a community of people of God. और यीशु मसीह चाहता है कि हम ऐसे एक झुंड लोग के साथ बने रहें जो परमेश्वर को He जानते wants हैं। us so that we will have a serving mentality. और ताकि इस प्रकार हमारी एक सेवा करने का एक मनोभाव बना रहे He calls us so that we will be generous, और इस प्रकार यीशु मसीह बुलाता है कि ताकि हम लोगों को दे पाएं so that we will have a generous mentality. और हमारे भी इस प्रकार का एक सोच हो कि हम दूसरों के लिए करें और दे पाएं We will be able to see others and their pain points. और दूसरे जब दुख में हो पीड़ा में हो तो उनकी दुख पीड़ा को देखकर Not simply to say, go well, be warm. और दूसरों की दुख पीड़ा को देखकर ऐसा सिर्फ ना बोले कि अच्छा है तुम शांति में जाओ सब सही हो जाएगा But whatever is within our ability, और हमारे अगर काबू में कुछ है हमारे हम किसी चीज के काबिल हैं we तो will take action. और हम उस प्रकार That is where God's blessings will be poured out into our और हम lives. उस प्रकार सहायता करेंगे तब जाके प्रभु की आशीषें प्रभु हम So पर remember, faith without works is useless. और तो एक चीज हम हमेशा याद रखें विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है Faith without works is dead. और विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ Our है faith is proven by our actions. और हमारा जो विश्वास है परखा जाता है हमारे कार्यों के द्वारा And our actions are louder than our words. और हमारे जो कर्म होते हैं हमारे बोलने से कहीं ज्यादा अधिक मान्य रखते हैं People are not fully touched by our words. You can touch them by your words, but by our actions have a long-lasting impact. और लोगों की जिंदगियां हमारे बातों से स्पर्श हो सकती है कुछ एक लिमिट तक परंतु कुछ सीमा तक परंतु अगर हम अपने कार्य करें तो उनका जीवन ज्यादा स्पर्श होगा उनके जीवन में ज्यादा रूपांतर It आएगा will have a long-lasting impact. बहुत ही एक लंबा और एक लंबे दौर तक उनके जीवन को Let's pray. Heavenly Father, I thank you. We commit all of us into thy hands. Lord, as we have read from your word, many times, कई बार पिता परमेश्वर हमने उन जरूरतों को नहीं देखा जो आप हमारे सामने लाया. We didn't see, Lord. Give us sensitivity these days to your voice and help us to understand your will. Help us that we will be people who will be impacting and touching many. But before that, help us that our own lives will be impacted and touched. So that, Lord, we will not be proclaiming, saying all these faith things in theory, intellectually. Rather, Lord, with whatever grace and mercy you have given us, we will be able to touch other people. In small way or a big way, whatever way you have helped us with. Strengthen us. I pray for a blessing upon this entire people who are here. प्रभु मदद कर कि आने वाले दिनों में हम अपने जीवन जिंदगी के द्वारा बहुतों के लिए आशीष बने. Make us a blessing for many, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे. Now, thank you, Pastor, for blessed message. Now we'll be having our MCA choir come forward and they'll be singing the songs. Let us be in the presence of God with an attitude of reverence and prayer.
assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine! Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect communion, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Thank you all. Now we'll be praying and concluding today's fellowship. Let's all put on our heads and see God's face once again. Gracious Heavenly Father, thank you Lord Father for this time which you gave. वे मेरे प्यारे परमेश्वर फिर से तेरे परमेश्वर तेरे पास आते हैं. धन्यवाद परमेश्वर, जो कुछ भी तू कर रहा है हमारे जीवन में वो सब जानकर धन्यवाद करते हैं. Especially Lord Father, you spend us some time, Lord Father, to sing songs and to Father hear from your word. Lord Father, as we heard today, faith without actions does not mean anything. Father, we pray that in the coming days you help us, Lord Father, to bring our faith into practice, Lord Father. प्रभु परमेश्वर फिर से हम जिस प्रकार आज हमने सुना, हमारे में विश्वास है परंतु कुछ हम कार्य नहीं कर रहे, तो हमारे विश्वास समान है और विश्वास मरा हुआ है. उस प्रकार की अवस्था हमारे जीवन में ना आ पाए. परमेश्वर हम फिर से हम एक एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं. यहाँ पर हमने कई सारी चीजें हमने प्रार्थना की, कई सारे विषयों को तेरे सामने रखा. सब फिर से परमेश्वर सारे विषयों को तेरे सामने रखते हैं. खासतौर से प्रभु के दास अगले सप्ताह
ट्रैवल करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी तेरा उद्देश्य है परमेश्वर वो सब पूरा हो पाए। टिम और लॉर्ड फादर भी जोएल भी जाएंगे, उन दोनों को भी परमेश्वर तो अपने अपने पंखों तले संभाल परमेश्वर पंखे तले फादर। परमेश्वर हम फिर से प्रार्थना करते हैं एक एक जनों के लिए, खास तौर से जोएल अंकल को जो तूने छुटकारा दिया वो जानकर हम धन्यवाद करते हैं। इस सप्ताह के ट्रेनर जो भी ट्रैवल करेंगे परमेश्वर गॉड वी प्रे लॉर्ड फादर फॉर ट्रैवलिंग मर्सीज। फादर वी वंस अगेन कमिट all others on your mighty hands who could not come today. Father, we pray that you keep them, protect them, lead us all, Lord Father. Once again, Father, we pray for your blessing and guidance, Lord Father. We pray that you only lead us, you only guide us, Lord Father. We need you every hour, every moment, Lord Father. We put our trust in you. परमेश्वर हम अपना विश्वास, अपना भरोसा फिर से तेरे ऊपर रखते हैं परमेश्वर। Praying, Lord Father, that you lead us, guide us, Lord Father. Never, Lord Father, let us, Lord Father, put us to shame, Lord Father. Once again, Father, we commit all these matters in your mighty hands. Lead us, guide us. In Jesus' name we pray. Amen. This moment, I request Pastor Tinku to come forward and do the benediction. Let's thank God for blessing our service this morning, this evening, and thank God for all His wonderful deeds. प्रभु के हर एक बरकतों के लिए हम खुदा का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love the Father, and fellowship of the Holy Spirit be with us all from now and forever.